on Unacademy, the most important benefit of. Hey, hi guys, good afternoon. Welcome to the class. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. What are the benefits of Unacademy? The first and most important benefit of Unacademy is that you will get daily live classes. These daily live classes are really very helpful and useful for your preliminary as well as mains examination, guys. Then on Unacademy, you will get structured courses. Again, these structured courses are very crucial and very important when it comes to. Just give me a minute, guys. A minute, and we will resume the class. I can't find my pen. Okay, it's here. Got it. Got it. Good afternoon to everybody. Good afternoon, home. Yes. So structured courses are mainly available on Plus and Iconic. So if you want to study in a structured manner, you should be either on the Plus or on the Iconic, guys, right now. And while going there, you should use this code SKUS. Then on Unacademy, I am conducting daily live tests at 8 a.m. in the morning and at 4 p.m. in the evening. So you should not miss these tests because both these live tests are very crucial for your 2021 prelims. Everything that is happening on Unacademy is in recorded format, so you will get unlimited access to each and everything. Good afternoon, Steve Austin. Guys, let me know, am I audible and visible? What you need to do is, guys, that just download the Unacademy Learning app from the Google Play Store or App Store and आपको जैसे Unacademy ऐप आप डाउनलोड करते हो, you have to open this profile, follow me on Unacademy, dedicate your hats to me on Unacademy, and please don't forget to use the SKUS code for 10% discount on Unacademy subscription. It is a viral code of success. This is my Telegram channel. What you need to do? You need to subscribe to this Telegram channel so that you can get all the PDFs that which are available with me, that too free of cost. Okay, these are India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. I am already one of them, guys. So thank you very much for your support. On Unacademy, we give comprehensive syllabus cover of all subjects from polity to history, from current affairs to Indian economy, from geography to optional courses, science tech to environment eco, practice to answer writing practice, art culture to NCERT summary. Okay, good afternoon, Judy. When you are on the Plus, guys, when you go on the Plus, you will get live classes, test series, unlimited practice and structured schedule. And if for that you have to like 12 monthly, this is the cost. But if you use the SKUS code, it will give you 10% discount and you are paying only this much. So this viral code of success is very important to earn discounts. When you are going for like Iconic subscription, there are extra benefits of Iconic. The first benefit is a personal push. Second benefit is mm, second benefit is the study planner. Third benefit is personalized feedback. तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट अलॉन्ग विद दी प्लस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कहाँ पे आपके आइकॉनिक पे. इवन ऑन आइकॉनिक इफ यू वांट 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन you have to use SKUS code that will give you 10% discount. Clear? Even optional की केस में भी हम 10% आपको डिस्काउंट देते हैं when it comes to viral code of success SKUS. These are the options that are available with Unacademy. आपकी जो यूपीएससी की एग्जाम है वो अभी बस 6 months बाकी है आपके एग्जाम्स के लिए. 27 जून को एग्जाम होने वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, आई एम नॉट रॉन्ग ऑब्वियसली. तो हमने एक चैंपियंस बैच लॉन्च की है जो 15 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, जिसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हेल्प करेंगे to crack prelim 2021. In the same way, we have already launched one course on YouTube, that is Impulse. या हिंदी मीडियम के लिए इसी कोर्स को हम आरोहण कह रहे हैं. ठीक है, तो अगर ये कोर्स आपको करना है, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो. इस कोर्स में मेरे क्लासेस होते हैं वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे. ये 3 दिन मेरे क्लासेस होते हैं और ये सारे क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में 9:45 AM को. क्लियर? इज दिस क्लियर? फाइन. So these are the batches that we launched for 21 prelims and mains. These are the batches for 22 and these are the batches for 23. तो यहाँ आप देख सकते हो 22 और 23 के लिए हमने complete years batch courses launch किए हुए हैं जो bilingual है, हिंदी भी है और
इंग्लिश में भी है। When you are going for iconic subscription guys, or if you are planning, you should go there as soon as possible because there is a proposed price hike of the iconic। तो आप जल्दी से iconic पे अभी जाइए। इसमें आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस, इंटेंस हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप, डे प्रैक्टिस, डेली आंसर राइटिंग, डेली कंटेंट और निर्मेंट टेस्ट सीरीज इवोल्यूशन भी मिल जाएगा। एवरीडे 8 AM का ये मेरा क्लास है, आपको ये मिस नहीं करना है। ये 1:30 PM वाला क्लास अभी हम यूट्यूब पे ले रहे हैं 1:30 को ही, तो ये भी आपको मिस नहीं करना है। क्लियर? तो ये मेरा प्लस स्पेस टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स है गाइस। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इकोटोन। वी आर डन विद द इकोटोन। कैन यू टेल मी important characteristics of ecotone before we go ahead? You already know it is the zone of junction between two or more diverse ecosystems. It is a transition area between two biological communities. It can be narrow or wide. ये सब हमने किया हुआ है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ, समझ रहे हो? अदरवाइज मैं स्लो जाता। देन आपको ये भी पता है कि दो इकोटोन हम कैसे समझ में आता है कि देयर इज शार्प बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कम्युनिटीज, तो उसे इकोटोन कहते हैं। यहाँ पे इकोलॉजी टेंशन में होती है, इसीलिए नाम इकोटोन। इको मतलब इकोलॉजी, टोन मतलब टेंशन। तो इकोलॉजी जहाँ टेंशन में है उसे हम कहते हैं इकोटोन। क्लियर? देन एक तो इसमें आप जब इकोटोन में जाते हो, फीचर्स में पहला फीचर है इसका शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन होता है। इसमें ग्रासेस का कलर चेंज होता है, प्लांट्स का कलर ऑफ हाइट चेंज हो जाती है। हमने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन सेकंड फीचर है इसका फिजियोग्नोमी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट चेंज होता है। किसमें? इसी में, इकोटोन में। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल स्पीसीज कैन चेंज ऑफ स्पीसीज कैन सिग्नल एन इकोटोन। तो चेंज ऑफ स्पीसीज इकोटोन सिग्नल करता है। अपीयरेंस ऑफ चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ प्लांट इकोटोन सिग्नल करता है। उसके बाद अगर आपके प्लांट की हाइट चेंज हो रही है तो उससे भी आपको इकोटोन पता चलता है। शार्प बाउंड्री, वेजिटेशन एंड ऑल, ये सब फीचर्स हमने इकोटोन के डिस्कस किए थे ऑलरेडी। फाइन। देन नॉर्मली जो होता है ना, इकोटोन में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होता है। तो चलिए इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज की बात करते हैं हम। तो इकोटोन ऐसा है जहां पे दो कम्युनिटी इंटीग्रेट होती है, एज वेल एज दी कम्पीट फॉर स्पेस इन द इकोटोन। तो इस तरह से इकोटोन डाइवर्स इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है। ये हो गया आपका पहला। इकोटोन फॉर्मेशन क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। जब फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उसकी वजह से इकोटोन फॉर्मेशन होता है। जिसमें हमने माउंटेन रेंजेस की बात की, फॉरेस्ट की बात की, देन एस्चुरीज की बात की, मैंग्रोव लैंड्स की बात की, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? फिर हमने माउंट वेंटॉक्स का एग्जांपल लिया था फ्रांस के, कैसे नॉर्थ और साउथ के फ्रांस को, नॉर्थ फ्रांस और साउथ फ्रांस के बायोलॉजिकल जो स्पीसीज है उनके लिए वो किस तरह से डिवाइडिंग फैक्टर एक्ट करता है। देन हमने फ्रांस के अलग अलग रीजन्स देखे थे, जिसमें ब्रिटेनी था, नॉर्मंडी था, शैम्पेन था, वोस्जेस था, ज्यूरा था, मैसिव सेंटर था, बर्गंडी था, गैस गैस्कॉग्नी था, पायरेनीज माउंटेन रेंज हमने देखी जहाँ पे 3 कंट्रीज आती है, स्पेन, देन उसके बाद फ्रांस और लक्सेमबर्ग। ओके, प्रोवेंस, आल्प्स ये भी देखा, आल्प्स इटली में मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में मिलेंगे और फ्रांस में भी मिलेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रांस के बारे में। देन हमने इकोटोन फॉर्मेशन में देखा था कि डिस्टर्बेंसेस और पैचेस भी होते हैं इकोटोन में, और इकोटोन रिप्रेजेंट्स शिफ्ट इन डोमिनेंस। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ वन इकोसिस्टम का डोमिनेंस कम होता है और दूसरे इकोसिस्टम का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ता है इकोटोन में, हम एक तरफ से दूसरी तरफ जब ट्रैवल करते हैं। तो इकोटोन रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट इन डोमिनेंस, ये भी हुआ था। देन हमने ये भी देखा था कि इकोटोन में 3 टाइप की स्पीसीज मिलती है। एक तो स्पीसीज जैसे ए बी और बीच में इकोटोन है, तो ए कम्युनिटी से भी स्पीसीज मिलेगी, बी कम्युनिटी से भी स्पीसीज मिलेगी, और इकोटोन की अपनी खुद की कुछ यूनिक स्पीसीज होगी। ये भी हमने बात किया था ट्रांजिशनल एरियाज की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एज के इफेक्ट। गुड आफ्टरनून सीनू। अब सुनिए, ecotone contains not only species common to the communities on both sides. Yes, ecotone, they have their own species which are adaptable to the transitional areas. और इसी ट्रांजिशनल एरिया के स्पीसीज के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे जो आपको सिर्फ इकोटोन में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरी ट्रीज, प्लांट का एग्जाम्पल मैंने दिया था सुंदरी ट्रीज का, करेक्ट।
अब हम बात करते हैं एज इफेक्ट की। बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। एक बार आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो गई ना, आपको लाइफ टाइम एज इफेक्ट और एज स्पीसीज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। द फेनोमेनॉन ऑफ इंक्रीज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स at the community junction. Yes, that ecotone is a community junction is called the edge effect and is essentially due to a locally broader range of suitable environmental conditions or ecological niche. तो सबसे पहले what is edge effect? मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सुनिए, हम एज इफेक्ट ये टर्म किसके लिए यूज करते हैं? देखिए, इकोटोन में क्या होता है, आपके दोनों इकोसिस्टम से इकोसिस्टम की दोनों जगह का जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है वो कॉमन आपको इकोटोन में मिलेगा। और ये दोनों जगह के फिजिकल एनवायरनमेंट एक साथ आने की वजह से जो इकोटोन है, दैट इकोटोन हैज इट्स ओन लोकल एनवायरनमेंट which is suitable for the growth of community from A ecosystem as well as community from B ecosystem। तो इससे हुआ क्या कि इकोटोन एक ऐसा रीजन बन गया जहां पे ए और बी दोनों जगह की स्पीसीज सरवाइव कर सकती है। तो ये एज इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह इकोटोन की अपनी खुद की कुछ यूनिक स्पीसीज होती है, तो उसकी वजह से भी इकोटोन में एज इफेक्ट मिलता है। पहला पॉइंट याद रखिए यहाँ पे, इकोलॉजिकल निश और एज इफेक्ट क्यों बनता है? क्योंकि इकोटोन में दोनों जो साइड में इकोसिस्टम्स है उनका कॉमन फिजिकल एनवायरनमेंट हमें मिलता है। और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने आपको इकोटोन एंड इकोक्लाइन एक्सप्लेन किया था। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोटोन एंड इकोक्लाइन एंड हाउ इकोक्लाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ इकोटोन? Let's see whether you guys can answer or not. What is ecocline and what is ecotone and what is the difference between ecocline and ecotone, guys? Quickly बता दीजिए। चलो तो देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ गाइस। हाँ, नहीं नहीं शीतल, बिल्कुल भी नहीं। मैं मस्त आराम करके उठा हूँ, अभी खाना खाया, मैंने आराम किया एंड देन आई एम बैक इनटू द क्लास। नॉट एट ऑल। हाँ, 11 AM वाले में थोड़ा सा था क्योंकि कंटिन्यूअस तीसरा क्लास था ना। चलो बोलो, इकोक्लाइन और इकोटोन में क्या डिफरेंस होता है गाइस? गुड आफ्टरनून सविता, आफ्टर लॉन्ग सविता, कहाँ थी आप इतने दिन? चलो बोलो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपके आंसर आने के लिए। फिजिकल ट्रांजिशन जोन इज इकोक्लाइन। यस गाइस, जो भी फिजियोकेमिकल, ये टर्म आपको यूज करनी है। फिजियोकेमिकल जो या फिजिकल जो ग्रेडियंट है ना, या फिर केमिकल जो ग्रेडियंट है उसे इकोक्लाइन कहते हैं। और इसी फिजिकल और केमिकल ग्रेडियंट में जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐड करते हो, ओके, बायोलॉजिकल पार्ट ऐड करते हो, तो आप उसे कहते हैं इकोटोन। ओके, वेरी गुड रमनदीप। इकोक्लाइन इज द कॉज एंड इकोटोन इज द इफेक्ट। इसमें हमने कहा था कि थर्मोक्लाइन कैन बी इकोक्लाइन, कीमोक्लाइन कैन बी इकोक्लाइन, हेलोक्लाइन कैन बी इकोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन कैन बी इकोक्लाइन। तो इसमें से कोई भी एक इकोक्लाइन हो सकता है। शीतल ने भी आंसर दिया एंड इकोटोन इज ऑफन एसोसिएटेड विद इकोक्लाइन ऑफ फिजिकल ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू सिस्टम्स। वेरी गुड स्टीव ऑस्टिन एंड रमनदीप, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं हम। फिर हमने इकोटोन डिस्क्राइब्स वेरिएशन इन स्पीसीज प्रिवेलेंस, ये हमें पता है। इकोटोन इज ऑफन अनऑब्ट्रूसिव एंड हार्डर टू मेजर, ये भी आप याद रखिए। सिंगल लाइन स्टेटमेंट से विच कैन बी आस्क्ड इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली। दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। आपको इकोटोन से जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो ये स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखिए। इकोटोन इज ऑफन अनऑब्ट्रूसिव एंड हार्डर टू मेजर। इजीली हम इकोटोन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ मेजर जो इकोटोन्स है ना उनको हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इकोटोन ट्रांजिशंस आर मोर क्लियर कट, डिस्टिंक्ट, कंडीशंस आर लेस स्टेबल, हेंस दे हैव लो स्पीसीज रिचनेस। नहीं, एक्चुअली इकोटोन में मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होता है। फिर हमने देखा था कि हाउ क्राइस्टमस एक्ट एज ए इकोटोन। ओके, रीजनल स्केल इकोटोन कैसे क्राइस्टमस एक्ट करता है।
उसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आपकी वैलेस लाइन एक्ट करती है एज अ मतलब बाउंड्री बिटवीन द वैलिसिया एंड इंडोमलायन रिआर्म। ये भी एक वैलिस लाइन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन। Ecotone is followed by ecocline. Ecocline is the starting point to the formation of ecotone. Yes, Neha, you are right. Thank you, sir, for remembering me. Actually, I was busy in offline study, but from now I will regularly follow you. That's great, Savita. And good afternoon, Priti. Savita, I want you to attend my morning 8 a.m. classes on Unacademy Learning App also. लाइव क्लासेस आपको अटेंड करने 8 a.m. और 4 p.m. पे, ठीक है। तो ये वैलिस लाइन भी हमने देखा था, बाली आइसलैंड, लोम्बोक आइसलैंड, जावा, सुमात्रा, बॉर्नियो, ये सब हुआ था ना हमारा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लोम्बोक स्ट्रेट मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। यस यस, ये हो गया था हमारा पूरा। अब हम बात करते हैं ये जो लोम्बोक स्ट्रोक के बाद ये कैमरून भी हो गया था हमारा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोटोन में, इसमें देखिए कैरेक्टरिस्टिक में हमने बात की थी कि इट इज अ जोन ऑफ ट्रांजिशन, इट इज लीनियर, इकोटोन लीनियर होती है, ये जोन ऑफ ट्रांजिशन है। और ये जो वेल डेवलप्ड इकोटोन्स होती है कंटेन सम ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एडजॉइनिंग कम्युनिटी। अब हम आगे एज इफेक्ट वाले टॉपिक पे। ओके, हमने ऑलरेडी बात की है गाइस, हमने ऑलरेडी बात की है कि जो आपकी इकोटोन है, इकोटोन में आपको कम्युनिटी ए से भी एक इकोसिस्टम ए से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, इकोसिस्टम बी के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, और इकोटोन के अपने आप में फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ यूनिक स्पीसीज होती है जो सिर्फ आपको इकोटोन में मिलती है, या फिर कुछ स्पीसीज होती है आइदर इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी से, जिनके लिए इकोटोन का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है। तो इसलिए वो पर्टिकुलर स्पीसीज ही उस इकोटोन में अच्छे से ग्रो कर सकती है, आइदर विच इज यूनिक टू द इकोटोन और which is like a species from either ecosystem A और ecosystem B which is present in the ecotone। तो ऐसी जो species है guys just give me a minute, I am stopping the, so there was a disturbance from the outside, that's why I stopped streaming। now we are going ahead again। थ्रो नॉलेज, नाइस। अरे आपका नाम जैसा है ना उसी तरह से मैं नॉलेज भी देता हूँ बच्चों को, ठीक है। सो देखिए, मैं आपको बोल रहा था नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन दिस जोन आइदर कम्युनिटी इज कॉल्ड एज इफेक्ट। वेरी गुड शीतल, वेरी गुड, ठीक है। सर ने वेट करने को कहा है, यस यशस्वी। चलो सुनो, एज इफेक्ट किसे कहते हैं? इकोटोन का जो यूनिक फिजिकल एनवायरनमेंट है वो सुटेबल होता है ए और बी जो एडजॉइनिंग दो इकोसिस्टम्स है उसमें से कुछ जो स्पीसीज है उनके लिए, या फिर इकोटोन की अपनी खुद की कोई यूनिक स्पीसीज होते हैं उसके लिए। तो क्योंकि इन पर्टिकुलर स्पीसीज को इकोटोन में एज मिलता है, वो ज्यादा ग्रो होती है, वो ज्यादा सर्वाइव कर पाती है, वो ज्यादा अडॉप्ट कर पाती है, इसलिए उस स्पीसीज को हम एज स्पीसीज कहते हैं। और ये इफेक्ट इकोटोन शो करता है, इसलिए हम उसे एज इफेक्ट कहते हैं। अब अगर मैं एक स्टेटमेंट करूं, एज इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व मेनली इन इकोटोन, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है गाइस? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके फाइन। सो समटाइम्स ये देख लीजिए, a well developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities। यही तो मैंने आपको बताया, ecotone contains a well developed ecotone contains some organisms which are entirely different from that of adjoining community, or sometimes number of species and the population density of some of the species are, some of the species की population density plus उनका जो number है is much greater in ecotone compared to either community। मतलब A और B के कंपैरिजन में जो इकोटोन है उसमें एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसे कहा जाता है एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज ये एज इफेक्ट शो करती है, the organism which occur primarily or most evidently, the organism which occur primarily or most evidently in this zone are known as edge species। तो क्या आप, वेरी गुड अजय कृष्णा, सुंदरी ट्री इन सुंदरबन, वाओ, सुंदरी ट्री इन सुंदरबन is an example of edge species and is an example of edge effect in the mangrove forest।
नो प्रतिभा झाड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोटोन। अगर इन स्पेसिफिक एरिया नहीं कह सकती आप, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज सिर्फ इकोटोन में मिल रही है ना, तो दैट इज एज इफेक्ट और दैट इज एज स्पीसीज। कंपल्शन है यहाँ पे एज इफेक्ट या ये एज स्पीसीज की टर्म आप तब यूज करते हो जब नॉर्मली वो स्पीसीज आपको इकोटोन में मिलती है। ओके प्रतिभा, ओके किसी को कोई डाउट है एज इफेक्ट और एज स्पीसीज में? एनीवन हैज डाउट? कोल कोला बियर तो नहीं कह सकते हम, लिटरली नहीं कह सकते कोला बियर। प्रतिभा झाड़े, सुंदरी ट्री का मैंने एग्जांपल दिया, सुंदरी ट्री शोज एज इफेक्ट एंड एज, it is age species. 90% age species are birds. 90% age effect is shown by the birds. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। How many of you are aware of the concept wetland? Nearly everyone knows wetland, right? Nearly everyone knows wetland. मुझे बताइए, most of the wetlands aren't they the bird sanctuaries or protected areas for the birds? Aren't wetlands are the protected areas for the birds? Yes, definitely wetlands protected areas for the birds है। अब मुझे बताइए वेटलैंड इकोटोन है या नहीं? वेटलैंड इकोटोन है या नहीं, आप लोग आंसर कीजिए। यस, वेटलैंड इज अ इकोटोन और मोस्ट ऑफ द टाइम वेटलैंड इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ फॉर बर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वेटलैंड वाला जो इकोटोन है उसमें बर्ड्स एज स्पीसीज है और बर्ड्स एज इफेक्ट शो करते हैं। तो मैंने आपको दो एग्जांपल दिए एज स्पीसीज और एज इफेक्ट के, वन इज सुंदरी ट्री एंड अनदर इज बर्ड। नेहा माथुर, यू कैन से सो बट नॉट एक्चुअली, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर से भी मतलब नहीं कह सकते हम। रॉयल बंगाल टाइगर आपको बहुत जगह पे मिलता है ना। हो गया क्लियर एज इफेक्ट और एज स्पीसीज? हो गया क्लियर? और भी चीजें आएगी आपको समझने के लिए, मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ आपको। ओके, सो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स, जो आपको दिया गया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज इफेक्ट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टेल मी, ग्रासलैंड इज इट एन इकोसिस्टम? क्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम है? स्टीव ऑस्टिन, इकिडनास, नो इकिडनास। सी, कोई एनिमल एज स्पीसीज या एज इफेक्ट नहीं शो कर सकता। वो एनिमल अगर इकोटोन में पाया जाता है तो उसे आप एज स्पीसीज या एज इफेक्ट कहोगे। ओके, चलो बताओ मुझे, ग्रासलैंड्स को हम इकोटोन कह सकते हैं क्या? कैन वी कॉल ग्रासलैंड एन इकोटोन? क्विकली बताइए, चलो जल्दी से बताइए। यस, वी कैन कॉल अ ग्रासलैंड इकोटोन। We can say in terms of population in age effect as compared to ecotone in particular area. Yeah, Ramandeep. Actually, I didn't understood what exactly you said. Yes, correct. तो ग्रासलैंड इज इकोटोन। अब मुझे बताइए, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड में सबसे डोमिनेंट स्पीसीज बर्ड्स नहीं होती क्या? जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपको डेक्कन पेनिनसुला के पार्ट जो है महाराष्ट्र वहां पे मिलता है, और दूसरा आपको डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में मिलता है। तो ये जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मेनली आपको कहाँ मिलता है? ग्रासलैंड में मिलता है। तो ग्रासलैंड जो होती है ना, ये भी स्पेसिफिकली बर्ड्स आपको वहां ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो बर्ड्स एज इफेक्ट या एज स्पीसीज ग्रासलैंड वाले इकोटोन में भी शो कर रहे हैं, ग्रासलैंड वाले इकोटोन में भी शो कर रहे हैं। यू आर गेटिंग मी? आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ एज स्पीसीज और एज इफेक्ट। जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट इज स्टडीइंग वेरी वेल, पॉलिटी स्टडी कर रहा है, बहुत जान लगाकर पॉलिटी को पढ़ रहा है, बहुत जान लगाकर इकोनॉमी को पढ़ रहा है, बहुत जान लगाकर हिस्ट्री को पढ़ रहा है, बहुत जान लगाकर ज्योग्राफी को पढ़ रहा है। ये चार मेन सब्जेक्ट है, इनको सारी दुनिया यूपीएससी के एस्पिरेंट सबसे पहले यही पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एस्पिरेंट है इनमें जिसने ये चारों सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन उसने साइंस, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट को भी इग्नोर नहीं किया। उसने इंस्टेड इन दो सब्जेक्ट में इतनी मास्टरी हासिल की कि वो इन दो सब्जेक्ट में सारे लोगों से आगे निकल गया और इन चार सब्जेक्ट में सबके साथ रहा। तो उसे साइंस टेक और एनवायरमेंट इको ने क्या दिया? एज दिया। इसलिए उसने प्रीलिम क्वालिफाई की, मेंस भी क्वालिफाई की। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोटोन एंड एज स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन? And Ramandeep, ecotone is the region where you will find age species.
इकोटोन अपने स्पेसिफिक फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से एज इफेक्ट शो करता है और इस एज इफेक्ट की वजह से इकोटोन में आपको एज स्पीसीज मिलती है। एज स्पीसीज का सिंपल मीनिंग है अ स्पीसीज व्हिच गेट्स एज compared to other species in an ecotone, that is age species, and that is age effect. Ecotone shows age effect. Ecotone shows age effect. मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार ये एक्सप्लेन करने में, पता नहीं क्यों ऐसा मन कर रहा है कि आंखें बंद कर लो और बस आपको पूरा दिन एज इफेक्ट और एज स्पीसीज के बारे में बताता रहूं। वाह, मतलब मेरी समाधि लगी थी ये एज इफेक्ट और एज स्पीसीज बताने में। आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे वाली स्लाइड पे जाते हैं, इसी पे टिके रहेंगे तो क्लास कैसे आगे जाएगा, है ना। तो एज इफेक्ट इट इज एन इकोलॉजिकल कंसेप्ट। डेफिनेशन वाइज वर्ड बाय वर्ड जाते हैं हम। देखिए ये जब तक आपको ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं आती ना तब तक आपको यूपीएससी अगर कहीं पे ट्रिक करती है क्वेश्चन में तो आप उन ट्रिकी क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाओगे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाते क्योंकि आपको एक तो पता होता है या नहीं होता, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं हमें लगता है कि मुझे आता है और फिर हम कभी कभी गलती कर देते हैं, वो हमें नहीं होने देना है। ठीक है, सुनिए। द एज इफेक्ट इट इज एन इकोलॉजिकल कंसेप्ट। अब क्या डिस्क्राइब करता है एज इफेक्ट? हाउ देर इज अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन द रीजन वेयर द edges to adjacent ecosystems overlap such as land, water or forest grassland. What a beautiful! यस बिल्कुल यादव जी, ये क्लास रोज होगी 1:30 PM को यूट्यूब पे। ओके सुनिए, मुझे अब ये एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आएगा। देखिए ये है आपका फॉरेस्ट, ओके, ये है आपकी क्लियर्ड लैंड, फॉरेस्ट एंड क्लियर्ड लैंड। तो क्या हम ये कह सकते हैं दिस इज इकोसिस्टम ए, दिस इज इकोसिस्टम ए एंड दिस इज इकोसिस्टम बी? ओके, और ये इकोसिस्टम बी है, कह सकते हैं ना। अब इन ये फॉरेस्ट का एज है, ये क्लियर्ड लैंड का एज है और इनके बीच में ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना ये इकोटोन है। क्योंकि ये रीजन दो इकोसिस्टम के एज पे है तो इसलिए इस रीजन में जो एक स्पेसिफिक बेनिफिट मिलता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, एक स्पेसिफिक बेनिफिट मिलता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, उस बेनिफिट को हम कह रहे हैं एज इफेक्ट। और जो स्पीसीज ये बेनिफिट एक्रू कर रही है, ये बेनिफिट ले रही है, उस स्पीसीज को हम कह रहे हैं एज स्पीसीज। तो ये टर्म एज क्यों हमने यूज किया? दो तरीके से यूज किया, बिकॉज दिस इफेक्ट और दिस species can be found at the edge of two ecosystem and because एज इफेक्ट की वजह से उस स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है सर्वाइवल के लिए इन इकोसिस्टम। ओके क्लियर, ये मीनिंग है इस डेफिनेशन का। इस डेफिनेशन का मीनिंग ये होता है कि एज इफेक्ट एक ऐसी इकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो दो इकोसिस्टम के एज के बीच, एज पे, दो इकोसिस्टम के एज पे एक अगर ज्यादा ग्रेटर डाइवर्सिटी आपको मिल रही है, मतलब इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी के कंपैरिजन में इस एरिया में इकोटोन एरिया वाले एरिया में आपको अगर ग्रेटर डाइवर्सिटी मिल रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको एज इफेक्ट और एज स्पीसीज मिल रही है। और ये इनको हम एज टर्म क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज यू विल फाइंड देम एट द एज ऑफ टू इकोसिस्टम। ओके, there is a greater diversity of life in the region where the ages of two adjacent ecosystem overlap. Is it clear? Is this definition clear to everyone? If so, I will go ahead. Is this definition is clear to everyone guys? चलो जल्दी बताओ आप लोग। अर्जुन, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अर्जुन यादव, एनसीसी अर्जुन यादव, यू आर गेटिंग मी? चलिए मैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाता हूं। At the edge of two overlapping ecosystems, you can find species from both of these ecosystems. Yes,
आपको इकोसिस्टम ए की स्पीसीज भी यहाँ पे मिलेगी, इकोसिस्टम बी की स्पीसीज भी यहाँ पे मिलेगी, ए की स्पीसीज भी मिलेगी और बी की स्पीसीज भी मिलेगी। ओके, क्लियर? एज वेल एज यूनिक स्पीसीज दैट आरंट फाउंड इन देयर इकोसिस्टम। प्लस इसमें ए इकोसिस्टम की स्पीसीज मिल गई, बी इकोसिस्टम की मिल गई और इसकी खुद की भी कुछ स्पीसीज मिलेगी, सी। ओके, सी स्पीसीज भी मिलेगी, बट आर स्पेशली अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू एजेस। अब ये जो सी स्पीसीज मिली ना हमने, ये सी स्पीसीज इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू द, इट इज स्पेशली अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द इकोटोन। इसलिए हमने इसे नाम दिया इकोटोन और इसलिए हमने इसे नाम दिया एज इफेक्ट और इसे हमने कहा एज स्पीसीज। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको इकोसिस्टम ए में कितनी स्पीसीज मिल रही है? 3। इकोसिस्टम बी में कितनी स्पीसीज मिल रही है? 3। आप देख सकते हो बी में अलग स्पीसीज है, ए में अलग स्पीसीज है, लेकिन आपको ये जो कॉमन एरिया दिख रहा है ओवरलैपिंग इन इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी के जो एजेस है वो क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। यस यशस्वी, सी एज स्पीसीज हो गई। ओके, पहले एज इफेक्ट और एज स्पीसीज समझिए। ओके, तो ए और ए में 3 स्पीसीज है, बी में 3 स्पीसीज है, लेकिन इकोटोन में हमें 9 स्पीसीज मिली। कितनी? 9। अब ये जो आपको स्पीसीज दिख रही है, ये वाला स्पीसीज का ग्रुप 3 वाला, ये यूनिक टू इकोटोन है, यस और नो? यूनिक टू इकोटोन है, यस और नो गाइस? सॉरी सॉरी, ये ट्रायंगल वाली, ये जो ट्रायंगल वाली स्पीसीज है आपको ये यूनिक टू इकोटोन मिलेगी। 1 2 3 4 और 5, आपको 5 ट्रायंगल मिल रहे हैं। राउंड 1 है, तो ये 6 ट्रायंगल मिल रहे हैं। स्क्वायर 1 2 है और राउंड 1 2 3 है। देख लीजिए, इसमें टोटल अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल्स है, राइट? देन अगर हम ये देखिए, स्क्वायर 1 2 और 3, स्क्वायर 3 है और राउंड कितने? 1 2 और 3 राउंड है। तो अब मुझे बताइए, इसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्पीसीज की है? ट्रायंगल वाले स्पीसीज की। तो हम क्या ये कह सकते हैं, ट्रायंगल वाली स्पीसीज एज स्पीसीज है। ट्रायंगल वाली स्पीसीज एज स्पीसीज है क्योंकि वो एज इफेक्ट शो कर रही है। क्यों हमने इसे एज स्पीसीज कहा? क्योंकि ये स्पीसीज हमें 2 ओवरलैपिंग इकोसिस्टम के एज पे मिली है। क्यों हम इसे एज इफेक्ट कह रहे हैं? क्योंकि इस स्पीसीज को ये जो ओवरलैपिंग एजेस है ए और बी इकोसिस्टम के, इनकी वजह से जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट हुआ है वो इस ट्रायंगल वाले स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत बेनिफिशियल है और उसका पूरा बेनिफिट ये ट्रायंगल वाली स्पीसीज ले रही है, तो हमने उसे नाम दिया एज स्पीसीज। तो एज स्पीसीज ये टर्म अगर हमें यूज करनी है ना, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, एज स्पीसीज ये टर्म आप उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज के लिए यूज कर सकते हो जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो इकोटोन में। और एज इफेक्ट या एज स्पीसीज द बिहारन, ठीक से सुनिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एज स्पीसीज या एज इफेक्ट ये कौन शो करता है? इकोटोन ही शो करता है। एज स्पीसीज या एज इफेक्ट आपको हमेशा इकोटोन पे ही मिलेगा। सर यूपीएससी ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती है डेली इस चैनल पर, एनीबॉडी टेल मी? यस अर्जुन, सारी क्लासेस होती है, लेकिन आपको ज्यादा मजा आएगा अनअकैडमी पे। ओके, समझ में आ रहा है? इकोटोन 2 इकोसिस्टम के एज पे होती है और 2 इकोसिस्टम के एज जहां ओवरलैप होते हैं वहां पे इकोटोन होती है, और एज इफेक्ट और एज स्पीसीज हमेशा 2 इकोसिस्टम के एज जहां ओवरलैप होते हैं वहां पे दिया जाता है। तो ये हो गया आपका एज इफेक्ट और एज स्पीसीज। वी आर गोइंग अहेड। एज इफेक्ट फिर से एक बार, एंड एज इज द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटी। यस डेफिनेटली, अभी हमने देखा ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, ये दूसरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, इन दोनों का इंटरएक्शन या इंटरफेस कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, इस एज में हो रहा है, इकोटोन में हो रहा है। तो एंड एज इज द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन 2 बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, एग्जांपल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड।
और बिटवीन टू लैंडस्केप्स एलिमेंट एग्जांपल लैंड एंड वाटर, इनके केस में एज जो है वो मैनग्रोव है, इनके केस में जो एज है वो मैनग्रोव है। ओके, नाउ व्हाट इज इकोटोन? इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन अलोंग द एजेस ऑफ टू एडजेसेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। देखिए एज क्या है, व्हाट इज एज? इट इज द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, लिसन टू दिस केयरफुली। एज इज द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन, एज इज द बाउंड्री और इंटरफेस बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बीच में जो बाउंड्री या इंटरफेस है उसे हम एज कहते हैं। और इकोटोन किसे कहते हैं? इट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन। वाओ, what a beautiful definition of edge and ecotone. Zone of transition again between two or more biological communities, between two or more biological communities। हो गया क्लियर? अब हम क्या एज और इकोटोन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? फ्री में क्लासेस कर सकते हो अर्जुन, आप फ्री में क्लासेस कर सकते हो, अनअकैडमी की बहुत क्लासेस फ्री होती है। ठीक है अर्जुन? गाइस अर्जुन को बता दीजिए मेरी कौन सी लाइव क्लासेस अर्जुन को कंपलसरी है करना अनअकैडमी पे फ्री में। आपको समझ में आ गया एज और इकोटोन में डिफरेंस? एज बाउंड्री है तो इकोटोन ट्रांजिशन जोन है। क्या एज और इकोटोन अलग हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। और इस इकोटोन में जो स्पीसीज मिलेगी उसे हम एज स्पीसीज कहेंगे, इस इकोटोन में जो इफेक्ट हो रहा है उसे हम एज इफेक्ट कहेंगे। चलिए आगे, अब एक पॉइंट बताइए मुझे, एज इफेक्ट की वजह से बायोडायवर्सिटी बढ़ती है या कम होती है? एज इफेक्ट की वजह से बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। बिकॉज ऑफ एज इफेक्ट बायोडायवर्सिटी इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? चलो 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 बोलो बच्चों, बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर के लिए। वेरी वेरी गुड, यहाँ पे रमनदीप, सविता एंड यशस्वी ने आंसर किया। गाइस एज इफेक्ट की वजह से बायोडायवर्सिटी इंक्रीज होती है। वाओ, कूल। चलिए हम आगे जाते, आपको आ गया एज इफेक्ट और एज स्पीसीज, आपकी इसमें इम्प्रिंट हो गया, समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे। अब देखिए एज इफेक्ट, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, सुनिए। Edge environments occur naturally at many ecosystem boundaries. Some examples of these are, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, हर नियरली एवरी इकोसिस्टम के बाउंड्री पे आपको एज एनवायरनमेंट मिलेगा। हर एक इकोसिस्टम के बाउंड्री पे आपको क्या मिलेगा? एज एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि जहां पे एक इकोसिस्टम खत्म होती है वहीं पे दूसरी इकोसिस्टम स्टार्ट होती है, और दो इकोसिस्टम के एज जहां पे ओवरलैप होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एज इफेक्ट कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एज कहते हैं, उसी को। और उसमें जो भी स्पीसीज हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? एज स्पीसीज कहते हैं गाइस। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल से कंसेप्ट और टॉपिक्स है ना। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यार ये पढ़ाने में। मन कर रहा है कि मेरा मन नहीं है भरता, तू ही है करता धरता, एज इफेक्ट छोड़ के जाने का मन नहीं है करता। बट अब क्या करें, जाना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा। ओके, सुनिए, चलिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। along the perimeter of bodies of water such as river, lake and streams। मुझे बताइए रिवर बैंक, बैंक ऑफ लेक, और जो आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम की बैंक, क्या इनको आप एज कह सकते हो? क्या इनको आप एज कह सकते हो बच्चों? डेफिनेटली आप इनको एज कह सकते हो, क्योंकि वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम खत्म हो रही है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, दोनों के एज एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं, इसलिए इसे आप एज इफेक्ट कह सकते हो। ये रीजन आपको एज इफेक्ट शो करेगा, ये पहला। ओके, दूसरा, where forest verge on rock outcrops riparian areas, that is river bank and grassland। again
एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और दूसरी तरफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो यहाँ पे भी आपको एज मिलेगा, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एज मिलेगा। वेरी गुड प्रतीक कुमार झा, आपको समझ में आ रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, देन along outcrops of exposed rock and cliffs, ठीक है, then where forested areas border clearings, then sharp discontinuities in soil type और hydrology exist, ये भी करेक्ट है। आपका जो गंगा प्लेन्स है और पेनिनसुलर इंडिया जो है, इनकी इन दोनों की बाउंड्री पे भी आपको एज मिलेगा, इकोटोन मिलेगा, एज इफेक्ट शो करेगा। ओके, इसलिए आप देख सकते हो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरवली रेंज, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है, दो दीज एरियाज आर पॉपुलेटेड इफ यू यूज योर लॉजिक। ओके, तो और इस्चुरीज हमें तो पता है, इस्चुरीज दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव बायो इकोसिस्टम। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दोज इकोटोन्स, the regions where the edges of two ecosystem overlap contain a great diversity of species than either of the two separate ecosystems and have significantly greater productivity for the following reason। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या compared to nearby two ecosystem is biodiversity more in ecotone? Compared to nearby two ecosystems, is biodiversity more in ecotone? Answer is yes. Compared to nearby ecosystems, is productivity more in ecotone? Answer is yes. But क्या ये always सही होता है? No guys. Sometime nearby ecosystem ecotone की comparison में nearby ecosystem ज़्यादा diverse हो सकती है. So it's not always. Sometimes. तो ये बायोडाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है इकोटोन में, उसके रीजन आपको यहाँ पता चलेंगे। पहला रीजन है दीज इकोटोन्स, देखिए दीज इकोटोन्स हैव सिग्निफिकेंटली ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड कंटेन अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज बिकॉज नंबर वन रिसोर्सेस, बिकॉज रिसोर्सेस। अब देखिए आप रहते हो यहाँ पे, ये इकोसिस्टम ए है, ये इकोसिस्टम बी है, ओके, और ये इकोटोन है आपका, दिस इज इकोटोन। अब इस इकोटोन में चलो वापस जाते हैं, सुनो इस पे जाते हैं, इसमें मजा आएगा बताने में। ज्यादा रिसोर्सेस कैसे क्या अवेलेबल हो गए इकोटोन में, इकोटोन में ज्यादा रिसोर्सेस कैसे क्या अवेलेबल हो गए मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताइए ये जो ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल वाली स्पीसीज बी इकोसिस्टम में जा सकती है रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए? यस। क्या ये ट्रायंगल वाली स्पीसीज ए इकोसिस्टम में जा सकती है रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए? यस। क्या ये ट्रायंगल वाली स्पीसीज इकोटोन के और एच के रिसोर्सेस एक्सेस कर सकती है? यस। मतलब इस ट्रायंगल वाली जो इकोसिस्टम है जो सिर्फ आपको इकोटोन में दिख रही है, वो दोनों इकोसिस्टम में रिसोर्सेस एक्सेस कर सकती है। इंस्टेड अगर इस स्क्वायर को यहां से इकोटोन क्रॉस करके इधर जाना है तो बिट डिफिकल्ट, अगर इस सर्कल को यहां से इकोटोन क्रॉस करके इधर जाना है तो बिट डिफिकल्ट। तो कंपेयर टू दिस ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल को इकोसिस्टम के रिसोर्सेस, दूसरे इकोसिस्टम के रिसोर्सेस एक्सेस करना बिट डिफिकल्ट है, और इसे रिसोर्सेस एक्सेस करना बहुत इजी है। इसलिए आपको इकोटोन में ज्यादा डाइवर्सिटी और ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है, क्योंकि इकोटोन में जो स्पीसीज है दैट स्पीसीज कैन एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम्स, फ्रॉम बोथ द इकोसिस्टम्स। ये पहला रीजन है कि आपको इकोटोन में ग्रेटर डाइवर्सिटी और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी मिलती है। Conditions such as air temperature, humidity, soil moisture and light intensity levels all change at edges, ठीक है। और then दूसरा very important है, these ecotones contain a greater diversity of species and have significantly greater productivity because favorable microclimates, फेवरेबल माइक्रोक्लाइमेट्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वापस यहाँ जाएंगे, मुझे बताइए ये जो आपका एज वाला पार्ट है, एज वाला जो पार्ट है, या फिर इसे ऐसे लेते हैं, ये है आपका इकोसिस्टम ए, ये है आपका इकोसिस्टम बी, और ये है आपका इकोटोन। अब मुझे बताइए ए में जो टेम्परेचर है
सपोज ए में 37 डिग्री सेल्सियस है और बी में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमें इकोटोन में टेम्परेचर क्या मिल सकता है? इकोटोन में हमें टेम्परेचर 37 भी मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है और इनका मिडल 33 भी मिलेगा। तो टेम्परेचर का वेरिएशन इकोटोन में ज्यादा है, इकोसिस्टम ए में ज्यादा है या इकोसिस्टम बी में ज्यादा है? तो गाइस यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा है तो यहाँ की स्पीसीज भी 37 की वजह से यहाँ जी पाएगी, यहाँ की स्पीसीज भी 30 डिग्री की वजह से यहाँ जी पाएगी और 33 डिग्री वाली अलग कोई स्पीसीज होगी। तो इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। जो माइक्रो क्लाइमेट है ना, दैट इज मोर फेवरेबल इन इकोटोन कंपेयर टू द इकोसिस्टम ए और इकोसिस्टम बी। सेम आप अप्लाई कर सकते हो सॉल्ट के लिए, सेम आप अप्लाई कर सकते हो एयर के लिए, सेम आप अप्लाई कर सकते हो वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, मतलब जितने भी अबायोटिक फैक्टर है ना उन सब के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो पहला रीजन व्हाई देयर इज अ सिग्निफिकेंट, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, बताइए why these ecotones contain a greater diversity of species and have significantly greater productivity? Why? मैंने आपको दो रीजन बताए थे, बताइए why they have greater diversity of species and why they have significantly greater productivity compared to either compared to nearby neighboring two ecosystems? बताओ, चलो बता दो। रमनदीप, नेहा माथुर, सविता को समझ में आ गया है, ऋषभ को भी समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है यार। इतना सिंपल सा टॉपिक है, इतनी सिंपल सी कंसेप्ट है, समझ में तो आनी है आपको। चलो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर गाइस, जल्दी से आंसर करो। नंबर 1 रिसोर्सेस एंड नंबर 2 फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट गाइस। दूसरा टर्म आपको क्या यूज करना है? नंबर 1 रिसोर्सेस एंड नंबर 2 फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट। तीसरा रीजन जानते हैं हम क्यों? ये आपके प्रीलिम के स्टेटमेंट्स हैं, इस पे क्वेश्चन आएंगे आपको प्रीलिम्स में इकोटोन पे। थर्ड इज इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। इकोटोन में आपको इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट टू प्लांट्स अलोंग द एजेस अलाउज मोर प्लांट्स टू बी सपोर्टेड, ग्रेटर डाइवर्सिटी एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब एज में आपको ज्यादा लाइट अवेलेबल कैसे हो गई? एक तो आपको रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल होते हैं, दूसरा फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट होता है, तीसरा कह रहे हैं कि इकोटोन वाला जो पार्ट है उसमें ज्यादा लाइट अवेलेबल है। अब ये कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम सीधा एग्जांपल लेते हैं, इकोटोन का ही एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताइए मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं या टेम्परेट एरिया में या कोरल में? उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो बहुत एक सीक्रेट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि आपको मजा आएगा, ओके। या फिर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, ये सपोज डेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके, दिस इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ये है आपकी ग्रास लैंड, यहाँ पे ग्रास लैंड है और इस तरफ है आपका डेजर्ट। अब ये अलग बात है कि डेजर्ट वाले एरिया में सनलाइट ज्यादा होगी, लेकिन कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्रीज लाइट इज अवेलेबल इन द ग्रासलैंड, यस और नो? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो वो बड़े बड़े प्लांट क्या करेंगे, लाइट को रीच नहीं होने देंगे नीचे। एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? सो इस तरीके से आपका जो तीसरा पॉइंट है आपको याद रखना है, दिस थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक। सो चलो मैं आपसे कुछ पूछ रहा था ना, आई गेस यू गॉट इट। तीसरा रीजन आपको पता चल गया है कि व्हाई द प्रोडक्टिविटी एंड द बायोडाइवर्सिटी इज मोर इन द इकोटोन एरिया, पता चल गया सभी को? चलिए आगे। तो पहला रीजन क्या है? रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, दूसरा रीजन है फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट एंड तीसरा रीजन है गाइस, द थर्ड रीजन इज इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। फोर्थ रीजन है इंक्रीज्ड प्लांट डाइवर्सिटी। जैसे ही लाइट की, बिकॉज लाइट अवेलेबिलिटी ज्यादा थी तो प्लांट ज्यादा ग्रो हो गए, तो प्लांट की डाइवर्सिटी बढ़ गई। क्योंकि प्लांट की डाइवर्सिटी बढ़ गई तो अब क्या होगा, जैसे ही प्लांट की डाइवर्सिटी बढ़ती है नेचुरली एनिमल की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, इंसेक्ट की डाइवर्सिटी बढ़ेगी। तो फोर्थ रीजन है
कि इंक्रीज प्लांट डाइवर्सिटी, एंड फिफ्थ रीजन है ecosystem edges and borders act as energy nets or sieve, capturing the massive movement of material, nutrient and energy across their boundaries. देखिए ये अगेन रिसोर्सेज से रिलेटेड है. Yes, Ajay Krishna, Sahel is a regional ecotone. Definitely, it is a regional ecotone. तो इकोसिस्टम ए से बी की तरफ कोई मटेरियल अगर ट्रैवल कर रहा है तो इट विल पास थ्रू इकोटोन. बी से ए की तरफ अगर कोई मटेरियल ट्रैवल कर रहा है तो इट विल पास थ्रू इकोटोन. तो दे एक्ट एज एनर्जी नेट. ओके, मतलब जो एनर्जी ए और बी इन दो इकोसिस्टम के बीच में ट्रांसफर होने वाली है ना, वो इसके थ्रू जा रही है, तो इसको ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी. तो अब आपको रीजन पता चल गया. नंबर वन, रिसोर्सेज. द फर्स्ट रीजन इज रिसोर्सेज. Number two, favorable microclimate. Number three, increased availability of light. Number four, increased plant diversity. And number five, it acts as an energy net or sieve. Guys, you enjoyed this class? Maza aaya? Then these ecotones contain a greater diversity of species than either of the two separate ecosystems and have significantly greater productivity because adjacent ecosystems are connected via flow of energy, material and organism across their boundaries, and these flows can exert strong influences on the fertility and productivity of ecosystem. ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से भी इकोसिस्टम की फर्टिलिटी क्या होती है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है इकोटोन वाले इकोसिस्टम की. वाओ. अब देखिए आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ. प्लीज रिमेंबर दिस. प्लीज रिमेंबर दिस गाइस. Everyone knows mangrove ecology is an example of ecotone, and yes, ecotone shows the edge effect. तो mangrove ecologies show edge effect. दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, आप ये क्वेश्चन ना आपकी यूपीएससी की जो फ्रेंड्स है ना, जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पूछ सकते हो कि भाई तू मुझे इकोटोन के एग्जांपल बता. वो आपको ग्रासलैंड और मैंग्रोव के बियॉन्ड इकोटोन के एग्जांपल ही नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा. तो आपको ग्रासलैंड एज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन पता है, मैंग्रोव एज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन पता है, वेटलैंड एज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन पता है, रिवर बैंक एज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन पता है, लेक बैंक एज एन इकोटोन एग्जांपल ऑफ इकोटोन पता है. इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, रीफ. रीफ इकोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन. अब आप बोलोगे सर ये रीफ इकोलॉजी क्या होती है? तो कोरल रीफ तो आप सब लोगों ने सुना होगा. एवरीवन नोज अबाउट द कोरल रीफ. अब गाइस ये जो रीफ इकोलॉजी है ना, इट इज द एज बिटवीन द कोरल्स जो आपको कोस्ट लाइन पे मिलते हैं. कोरल आपको मेनली कहाँ मिलते हैं? हार्ड सरफेस पे और कोस्ट पे ही मिलते हैं, कहीं और आपको कोरल नहीं मिलते. तो ये कोरल हार्ड सरफेस जो कोस्ट लाइन के पास है, इनके और जो डीप ओशियन या ओशियन है, इनके बीच में आपको रीफ्स मिलते हैं या रीफ इकोलॉजी मिलती है. तो रीफ इकोलॉजी इज एन एग्जांपल ऑफ एज इफेक्ट, या कोरल रीफ इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन. अब मुझे बताइए एक्वेटिक इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ होती है? कोरल रीफ में. सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन होता है? इस्चुरीज के बाद कोरल रीफ्स होते हैं. So now you will understand. Okay, now you will understand. So mangrove ecology, ecotone; reef ecology, ecotone; estuaries, ecotone; riparian areas, that is banks of rivers and streams, ecotone. इतने सारे एग्जाम्पल आज आपको इकोटोन के पता चल गए. आगे ट्रेडिशनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मुझे बताइए मोस्ट ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट हिस्टोरिकली आपको कहाँ मिलती है? हिस्टोरिकली ह्यूमंस कहाँ सेटल होती है? चलो बताओ. हिस्टोरिकली ह्यूमन सेटलमेंट आपको मेनली कहाँ मिलती है? बताओ बताओ बताओ. बड़ी ब्यूटीफुल इंसाइट आपको अब मिलने वाली है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की और हिस्ट्री की. चलो बताओ. और ये आपको टाउन प्लानिंग में हेल्प आउट करेगा. आपको डिटेल वे से आप एक टाउन प्लानर्स के साथ इतना अच्छे से डिस्कस कर सकते हो. इसीलिए तो आईएएस ऑफिसर बहुत ग्रेट होते हैं, क्योंकि उनको सब पता होता है, नियरली सब पता होता है. यस ऋषभ. चलो आई आस्क यू समथिंग गाइस, प्लीज आंसर. चलो आंसर दो. मैंने कुछ पूछा है आपको. बैंक्स ऑफ द रिवर्स, वेरी गुड, नियर रिवर. तो मुझे बताइए जिस रिवर के पास ह्यूमन सेटलमेंट आपको रिवर बैंक पे मिलते हैं, वो रिवर बैंक इकोटोन है या नहीं? दैट रिवर बैंक इज अ इकोटोन, यस और नो? तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? यस. तो देख लीजिए, ट्रेडिशनल, वेरी गुड, ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट्स
are usually located at the highly productive transition zones between ecosystems, such as you will find them alongside rivers, you will find them alongside estuaries or ocean, then between foothills and plains and the outskirts of forest or any combination of these. So आपको most of the human settlement transition zone पे ही मिलेगी, which is a transition zone between two main ecosystem. दो इकोसिस्टम जो है उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है ना, उसी ट्रांजिशन जोन में आपको ह्यूमन सेटलमेंट भी मिलेगी. अगर कल आपको स्टेटमेंट आ जाए कि traditionally human settlements can be found at the transition zone of the two ecosystem, that is ecotone, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? Is this statement correct, guys? This statement is correct. लेकिन अगर आपने ये जो अभी मैंने आपको बताया ना, ये वाला पॉइंट पढ़ा नहीं होता, ये वाला पॉइंट सुना नहीं होता, तो आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और आप सोचते बैठते कि अच्छा ह्यूमन सेटलमेंट इकोटोन में थी, अरे नहीं ह्यूमन सेटलमेंट मैंग्रोव में तो नहीं होती, फिर हम कैसे कहें कि इकोटोन में होती है? आप इस तरह से सोचते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में मैंग्रोव और ग्रासलैंड ही एज ए इकोटोन बैठा है, और यूपीएससी फिर ऐसे थोड़ा इधर उधर जाके आपको बोलता है चलो बेटा नेक्स्ट ईयर आना, क्योंकि तुमने सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी किया है. एनवायरमेंट इको का इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए, जहां जहां पे ट्रिक होने की पॉसिबिलिटी ना हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा तो वो तो हम आंसर करेंगे, लेकिन लेकिन अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो उसका भी आप लोग आंसर कर पाओगे क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पढ़ा. ओके, चलिए आगे. तो ये हो गया एज इफेक्ट. अब ये जो नीश वाला टॉपिक है वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके, नीश क्या होती है, टाइप्स ऑफ नीश हम डिस्कस करेंगे. ओके, उसके बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने जो नीश की टाइप्स बताई वो भी हम कल डिस्कस करेंगे. पूरा नीश वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे. दैट्स इट फॉर द डे गाइस. आज मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया ये वाला क्लास 1:30 PM वाला कि आपको क्या बताए. मन कर रहा था कि मैं अभी भी मन कर रहा है कि क्लास ना स्टॉप करूं. ओके, लेकिन अब क्या ऑप्शन नहीं, क्योंकि मुझे फिर 4 बजे क्लास लेना है, तो अभी क्लास तो एंड करना पड़ेगा. गाइस, जब आप क्लास छोड़ने से पहले एक बात याद रखिए, आपको एक कोड यूज करना है व्हेनेवर यू आर गोइंग टू द वेलकम सविता. एंड सविता, डू ज्वाइन मी टुडे एट 4 PM. 4 बजे की मॉक टेस्ट को आप मुझे ज्वाइन कर रहे हो एट एनी कॉस्ट सविता, लाइव. और जितने स्टूडेंट अभी इस क्लास में, आप सब स्टूडेंट को एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं. इसके बाद मेरा क्लास है 4 PM को, और ये 4 PM वाला क्लास होने वाला है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. इसकी जो लिंक है ना 4 PM वाले क्लास की, मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दी है. तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और लिंक सर्च करो 23 दिसंबर अनअकैडमी लर्निंग ऐप 3:55 PM क्लास, लाइक दैट. 3:55 PM कहा है मैंने, आप सर्च कीजिए. ये मॉक टेस्ट है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चन पूछूंगा, इकोनॉमी के, और सब लोग ये क्लास लाइव करेंगे. ठीक है, ये क्लास लाइव करेंगे. तो जाने से पहले आपको वायरल कोड ऑफ सक्सेस याद रखना है, SQS, बिकॉज दिस कोड इज गोइंग टू गिव यू 10% डिस्काउंट ऑन योर प्लस एज वेल एज योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. कहीं पे भी अगर आपको कोड पूछती है अनअकैडमी, तो आपको सिर्फ एक ही कोड पता होना चाहिए, वो है SQS. ओके. दूसरी बात, जब भी आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओगे, अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर आपको क्या करना है, इस अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल को फॉलो करना है, प्लस मेरी ही प्रोफाइल को आपको हैट्स डेडिकेट करनी है. ओके, so that's it for the day guys. Thank you very much for joining me. We are meeting again at 4 PM on Unacademy Learning app with an awesome mock test. Till that time, bye bye, take care, sayonara guys.